तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था फिस्कल ईयर वेरिएंट. आज हम करेंगे ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट. सर बाकी सारे म्यूट हो जाएं तो बेटर है. बाकी सब लोग म्यूट हो जाएंगे प्लीज, बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है. डिस्टर्बेंस है. हाँ. ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट्स. Open and close posting period variant is a up to 4-digit alphanumeric. Up to 4-digit alphanumeric. Standard SAP में होता है 0001, 1000, बट हम अपना क्रिएट करेंगे, राइट, अप टू 4 digit. अब ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड्स होता क्या है, एंड इट्स डिफाइंड एट क्लाइंट लेवल. क्लाइंट लेवल का क्या मतलब होता है? It will be applicable for all company code which will be created under this client. Yes. It would be applicable for all the company codes which are related to April to March. Because open and close posting period का मतलब क्या होता है कि which period, which month you need to post any transaction, and which period you have already closed that and you want user to restrict the entry for that particular period. Means अगर कोई closing complete हो चुकी है, suppose कोई month end it's already closed, month end activities are already done, so after this month end activities you have closed that period and you don't user want to enter any other entry in that particular period, right? Example, suppose you have closed June or June month. What all are the month end activities in accounting? Anybody has idea? What different activities that we need to do for doing the complete month end activities? So whatever you told us, a depreciation, GST, vendor clearing. What vendor? What vendor? Vendor reconciliation. Bank reconciliation. Bank reconciliation. What else? What depreciation, other? Okay, depreciation done. Provisions for salary. What else? TDS. Yes, TDS. और क्या हो सकता है? Salaries. Provisions हो गए. Okay, that's fine. तो आपने क्या किया, अपना मंथ एंड एक्टिविटी आपने कंप्लीट कर दिया. अब यूजर ने क्या किया, मंथ एंड एक्टिविटी कंप्लीट हो गया एंड यू सबमिटेड योर बैलेंस शीट P&L टू योर मैनेजमेंट. After submitting this books to your management, user has posted one more transaction in that particular month. And अब मैनेजमेंट ने उसको रिव्यू करना स्टार्ट किया इन ए सिस्टम. वो रिकंसाइल कर रहे थे whatever data you have submitted in terms of balance sheet and P&L to the management. Now management is trying to reviewing that particular part from SAP. मैनेजमेंट ने देखा तो गैप्स हैं. अब आप फाइंड आउट करोगे किस यूजर ने किया ये, राइट? तो अब उस एंट्री की वजह से आपकी पूरी बुक्स ही, जो आपका मंथ एंड एक्टिविटी था, वो कंप्लीट नहीं हुआ वो. सो इन दैट केस यू कैन रिस्ट्रिक्ट और यू कैन क्लोज दैट पर्टिकुलर पीरियड, राइट? एंड there are 5 different level where you can do this activity. One is A, D, K, M and S. And one is plus account type. अब होता क्या है, this is for all account type. Assets, fixed, debtors, creditors, materials and GL. So अब आपने
पीरियड को क्लोज करना है, सपोज आपको जून मंथ क्लोज करना है एंड यू विल ओपन द जुलाई पीरियड. जून पीरियड इज ए थर्ड मंथ, this is the fourth one, right? So you have decided, so first on the day first of July of subsequent month, suppose J plus 1, you want to close, you want to complete your month end activities for fixed assets, and this would always be open, because all these four account type completely dependent on GL, because इसके बिना GL के बिना, because these account types are nothing, because सबका ultimately जो impact है वो finance में जाएगा, और finance means GL. तो उसमें क्या किया आपने उसका पहले fixed assets आपने complete start किया जुलाई 1 को, and day end आपने fixed assets को complete कर दिया. So after this closing आपने decide किया, and J plus 2 will do this. 1 plus 2 plus 3 plus 4, because ये आपका पैरेलली ओपन ही रहेगा. डेटर्स के केस में आपने J plus 2 में गए एंड दिस इज क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द डे ऑफ July 1. July 2 you have opened the debtors period J plus 2. You have done all the activities related to month end. Suppose कोई invoices pending थे, कोई डिलीवरी पेंडिंग था, वो आपने कंप्लीट किया, एंड दिस इज आल्सो क्लोज्ड. नाउ गो टू क्रेडिटर्स J plus 3. J plus 3 में आपने एक्टिविटी स्टार्ट किया क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स के जो भी आपके पेंडिंग वर्क थे वो आपने कंप्लीट किए, देन इट इज क्लोज्ड. नाउ J plus 4. अब आपने मटेरियल्स की एक्टिविटी स्टार्ट की, एंड दिस इज अगेन क्लोज्ड. दैट मीन्स आपने जुलाई 4 को अपना जून मंथ कंप्लीट क्लोज कर दिया आपने. अब 5 जुलाई ऑनवर्ड्स कोई भी यूजर मंथ एंड एक्टिविटीज नहीं, अपनी मंथ एंड कोई भी क्लोजिंग या कोई भी ऐसी पोस्टिंग जून मंथ में पोस्ट नहीं कर पाएगा. तो ये हमारे लिए कंट्रोल है. बेस्ड ऑन दिस कंट्रोल हम अपनी बुक्स को क्लोज करने के बाद हम उसको फर्दर अलाउ नहीं करते हैं यूजर पोस्टिंग करने के लिए. So there are two levels where we open and close the posting periods. Generally, we open the period. Close happens automatically. Close अपने आप हो जाता है वो, अगर हम period open करते हैं तो. There are two things, FI और दूसरा है MM, SD and PP. MM, SD, PP का जो month period है, जो period open close है, that's a different activity. Finance का different activity है. हमने डिस्कस किया था इन लास्ट क्लासेस. सो MMSDPP इज हैविंग अराउंड 98% ऑफ डेटा ऑफ फाइनेंस. सो MMSDPP का जो डेटा है वो 98% है कंप्लीट FI का. जो हमारी एक्टिविटीज हैं, डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन, प्रोविजन, ये सब 2% एक्टिविटीज हैं इफ वी कंपेयर विद द फाइनेंस एक्टिविटीज. तो हमारा जो कंट्रोल है वो यहां होता है. तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन अवेलेबल है कि हम यहां पर सिर्फ करंट और प्रीवियस पीरियड ही ओपन क्लोज कर सकते हैं. करंट पीरियड एंड प्रीवियस पीरियड विच इज इमीडिएट प्रीवियस. करंट मींस जो हमारा जुलाई पीरियड है, जो हमारा जुलाई पीरियड है, राइट. और प्रीवियस मींस जून. राइट. यस. तो सर हम एक टाइम पे 2 पीरियड्स खोल के रख रहे हैं. देखिए एसएपी के एमएम के अंदर MMSDPP जहां पर मटेरियल की मूवमेंट होती है वहां पर एसएपी 2 ही मैक्सिमम पीरियड अलाउ करता है. इवन हम प्रीवियस को भी क्लोज कर सकते हैं, हम सिर्फ करंट पे ही वर्क कर सकते हैं. बट इन फाइनेंस इट्स वेरी मच फ्लेक्सिबल. नो लिमिट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग पीरियड. इसका मतलब क्या है?
बट एफआई में भी सर हम तभी 2 पीरियड खोल के रखते हैं ना जब अगर हमको कोई एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, हाँ, अदरवाइज लेकिन तो यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। आप इवन आज जुलाई में बैठे हैं, आप लास्ट ईयर मंथ का जनवरी मंथ में कोई पोस्टिंग कर सकते हैं, बट जो चीज यहाँ पॉसिबल नहीं है एमएमएसडीपीपी में। ओके ये ऑप्शन अवेलेबल है। इवन 2 साल पहले की जाके पोस्टिंग कर सकते हो आप फाइनेंस में, बिकॉज फाइनेंस की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बिकॉज फाइनेंस इज ए इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल जिसका कहीं कोई इंपैक्ट नहीं जाता है, लेकिन एमएमएसडीपीपी का इंपैक्ट फाइनेंस में जाता है। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन हम यूजर को सिर्फ, और एसएपी ने सिर्फ 2 ही पीरियड ओपन करने का आपको ऑप्शन दिया है, 3rd पीरियड आप नहीं कर सकते यहां पर। बट फाइनेंस में आपके पास कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है। whatever period you want to open it, just open, post the transaction and close that. सिस्टम अलाउ करेगा। हम नहीं करते हैं ये एक अलग चीज है, बट सिस्टम अलाउ करता है। क्लियर? सो फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे कि हमने एसेट्स में, फिक्स एसेट्स में कोई हमको कुछ एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है, तो हम पहले फिक्स एसेट्स का वो पर्टिकुलर पीरियड खोल के वो एंट्री पास करके देन उसको जीएल, मतलब उसको जीएल में वो करेंगे, इंटरफेस करेंगे। देखिए क्या है, फिक्स्ड एसेट्स इट्स ए कंप्लीट इंटीग्रेटेड विद फाइनेंस। मतलब वैसे आप बोलेंगे कि ये तो फाइनेंस का ही पार्ट है, बट एक्चुअल नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स इज ए सब मॉड्यूल ऑफ एफआई। एग्जैक्टली, सब लेजर, राइट। तो जो आपका वहां से जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं वो फाइनेंस को हिट करती हैं। तो आपने जो एक्टिविटी स्टार्ट किया वो आपने फिक्स्ड एसेट से स्टार्ट किया। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आपने सपोज अप्रैल मंथ में एक एसेट को सेल कर दिया अप्रैल 20 को, जो कि आपको यूजर ने इंटीमेट नहीं किया, यूजर ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, और आपने अपनी एक्टिविटीज क्लोज कर दी अप्रैल मंथ की। आपने डेप्रिसिएशन भी रन कर दिया, सब एक्टिविटीज हो गई। अब आपको जिस दिन आपकी एसेट सेल हुई आपको वही डेट दिखाना पड़ेगा सिस्टम में। अब आप क्या करेंगे, देखिए कितना फ्लेक्सिबल है सिस्टम, हम वो समझते हैं। अब आप जाके अप्रैल मंथ में पोस्टिंग कर देंगे। अगर वो आपका एक्टिविटी चल रहा है फाइनेंस मॉड्यूल के थ्रू, बिकॉज सेल आपकी एसडी मॉड्यूल के थ्रू भी हो सकती है फिक्स्ड एसेट्स की, बट हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंस मॉड्यूल में आपने जो एक्टिविटी जो सेल किया वो 20 अप्रैल को किया। अब जो डेप्रिसिएशन सिस्टम ने ऑलरेडी अप्रैल मंथ का 21 टू 30 का पोस्ट कर दिया, कंप्लीट मई मंथ का पोस्ट कर दिया। अब आप बैठे हैं जून मंथ का पोस्ट कर दिया, अब बैठे हैं जुलाई में। अब आप जब जुलाई का रीरन करेंगे डेप्रिसिएशन, तो सारा डेप्रिसिएशन रिवर्स कर देगा सिस्टम जुलाई मंथ में। ओके, बट आप डेप्रिसिएशन अप्रैल मंथ में पोस्ट नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन पोस्ट होगा या तो जून मंथ में रिपीट में या जुलाई मंथ में। जो भी आपका इमीडिएट प्रीवियस पीरियड का जो रन है डेप्रिसिएशन का, सिर्फ उसी में जाके चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने सपोज अप्रैल मंथ का अभी डेप्रिसिएशन रन नहीं किया, तो भी आप ये एक्टिविटी कर पाएंगे अप्रैल मंथ में। तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम 20 तारीख को, आज की डेट में बैठ के 20 तारीख को जो आपने पोस्टिंग की है उसकी एडजस्टमेंट जो होगी 11 डेज का जो एक्स्ट्रा जो डेप्रिसिएशन लगना था वो नहीं लगेगा सिस्टम में। तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली कर लेगा, आपने केवल उसको सेल करा उस एसेट को। यस, ऑटोमेटिक करेगा। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन है एसएपी की। लेकिन सर जो एडजस्टमेंट वो करेगा वो सिर्फ सब लेजर लेवल, मतलब डेप्रिसिएशन लेवल पे करेगा, लेकिन जीएल में वो सिर्फ करंट मंथ में एंट्री दिखाएगा, राइट? नहीं, अगर आपका सपोज पीरियड ओपन है अप्रैल नंबर 1, डेप्रिसिएशन आपने पोस्ट नहीं किया है अप्रैल का, तो आप उस दिन पोस्ट करेंगे उसी दिन इंपैक्ट जाएगा। ओके। अगर आपका पीरियड क्लोज है अप्रैल, तो सिस्टम पोस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एसएपी के अंदर डेप्रिसिएशन पोस्टिंग के डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप फोर्टनाइट पोस्ट कर सकते हैं, आप मंथली पोस्ट कर सकते हैं, आप क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली और ईयरली पोस्ट कर सकते हैं डेप्रिसिएशन। ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं एसएपी में। फोर्टनाइटली डेप्रिसिएशन भी होता है एसएपी में। तो इन केस 20 अप्रैल को जो सेल करा है वो अभी सिस्टम में नहीं लिया है, डेप्रिसिएशन लग गया अप्रैल मई जून तीनों का, हाँ,
तो क्या कर रहे हैं? जुलाई में हम जाके उसको अगर सेल करते हैं करेक्ट रेक्टिफिकेशन नहीं, सेल तो फिजिकली आपकी अप्रैल 20th को ही हो चुकी है। हाँ, सिस्टम में हम उसको सेल करके मतलब उसको रेक्टिफाई करते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप अप्रैल 20th की पोस्टिंग डेट डाल के वो पीरियड ओपन करके पोस्ट कर सकते हैं। हाँ, तो जो बाकी डेप्रिसिएशन जो हुआ है वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा। 11 डेज का अप्रैल का जो एक्स्ट्रा पोस्ट हुआ, मई का और जून का एक्स्ट्रा पोस्ट हुआ, वो जुलाई में रिवर्स कर देगा। ओके। और अगर नहीं हुआ है, जैसे मे बी हमने अगर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे या पोस्टिंग करते थे, तो उस केस में वो कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन हुआ ही नहीं है। देखिए, अगर आप क्या फिजिकली आपने अप्रैल में सेल कर दिया और आप उसकी पोस्टिंग आप जुलाई में कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट ही नहीं है ना लास्ट फिर तो आपका डेप्रिसिएशन भी तब से चलता आ रहा है सिस्टम में, क्योंकि फिजिकल सिस्टम चेक नहीं करता ना, सिस्टम तो सिस्टम चेक करता है। ओके, राइट। Okay. Now we'll open this screen. एक एग्जांपल ये बाद में जब भी आप ये कर रहे होंगे तो MMPP या फिर SD की तरफ से देंगे जहां पर दोनों इंपैक्ट कर रहे हो। हाँ, देखिए MMSD PP मैंने आपको क्यों बोला, बिकॉज वहां पर मटेरियल की मूवमेंट होती है तीनों मॉड्यूल्स। हाँ। तो जब हम MMSD PP का इंटीग्रेशन करेंगे तब हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोबारा से डिटेल। ओके, फाइन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, ग्लोबल सेटिंग्स, लेजर्स, फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड, डिफाइन वेरिएंट्स फॉर पोस्टिंग पीरियड। पहले वेरिएंट डिफाइन करेंगे। न्यू एंट्रीज, हमारा कंपनी कोड क्या था? IBM। सेम कोड रखते हैं हम, आप चाहें तो डिफरेंट भी रख सकते हैं। ये रिक्वेस्ट हमने सेव कर दिया, बैक करते हैं। असाइन वेरिएंट्स टू कंपनी कोड, अब हम वेरिएंट को असाइन करेंगे। 142 has opened this SM12 142 and kill this session. Position IBM and IBM1, ये हमारा वेरिएंट असाइन हो गया। देन विल गो टू ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड्स, न्यू एंट्रीज, IBM1, ये है हमारे अकाउंट टाइप्स प्लस ADKMS। हम लास्ट वाला हम कंसीडर नहीं करते हैं, ये हमारा मॉड्यूल नहीं है, ये डिफरेंट मॉड्यूल है। सो या तो आप 5-6 को आप इंडिपेंडेंटली डिफाइन करेंगे या फिर आप सिर्फ प्लस को कर दीजिए। प्लस में क्या है? पीरियड 1 2019 to 12 2019। राइट, सो इसका मतलब क्या है? अभी हमारा पीरियड कौन सा चल रहा है? 20, तो हम इसको 20 करते हैं। सो फ्रॉम पीरियड 1 20 to 12 2020 मींस अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा और मार्च 2021 तक जाएगा ये, इसका ये मतलब है। बट हमारा पीरियड कौन सा ओपन है? अभी हमारा कौन सा करंट पीरियड चल रहा है? 44। तो अभी क्या हुआ? जुलाई टू जुलाई। अगर आपको सपोज जून और जुलाई पैरेलल ओपन करना है तो आप ये कर सकते हैं। आई थिंक आप फ्यूचर का भी ओपन कर सकते हैं क्या इसमें? जैसे आपने कर सकते हैं। ओके, बट उसका बेनिफिट्स क्या होंगे फ्यूचर का? तो फ्यूचर आप करेंगे क्यों लेकिन? हाँ, जैसे आपने लिखा था ना वो 21 तक 1 to 12 आपने पीरियड डाल दिया था, तो बस उसकी वजह से पूछा। हाँ, तो मैंने बिकॉज आप ओपन करके छोड़ दीजिए। अब यूजर को आप अगर रिस्ट्रिक्ट करना चाहते तो नहीं करेंगे। मैंने जस्ट आपको एक ऑप्शन दिखाया था, ये पॉसिबिलिटी है। राइट, सो इसमें एक ऑप्शन हो रहा है। सपोज आपको सेकंड और फोर्थ 2 पीरियड ओपन करते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। एक बार मे बी म्यूट अगेन, किसी ने खोल रखा है तो। यस अभिषेक। नो सर, प्लीज कंटिन्यू। मतलब उसके लिए मेरे को राइट डिस्टर्बेंस आ तो रही है। यहां पर हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो आप सीक्वेंस में नंबर्स मेंटेन कर लीजिए फ्रॉम टू 2 में,
या आप अगर आपका सपोज नॉन सीक्वेंशियल कोई पीरियड ओपन करना है आपको, तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? अभी आपके पास कितने पीरियड ओपन है? नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं? 4 12 1 अब कितने हैं? 4 ओके। अब कितने हैं? 12 हाँ? 14 कैसे? 4 3 12 है ना? 12 हुआ नहीं, कितना 9 मंथ्स इस साल के और 21 का 4 मे बी 9 + 4 13। या यस यस, तो ये इसका पर्पस है इसको करने का। ठीक है, कोई डाउट इसमें? हाँ सर। ओके, नाउ एक्चुअली आज हम थोड़ा सा छोटा सेशन कर रहे हैं, सो नेक्स्ट टाइम विल हैव ए लॉन्ग सेशन बिकॉज आई हैव अनदर कॉल टुडे। So I am just giving you one topic that you just go through with the book which we have provided. वो टॉपिक है फील्ड स्टेटस ग्रुप। ये टॉपिक आपको पढ़ना है, राइट? ओके ओके सर। आई थिंक डे आफ्टर है ना हमारा नेक्स्ट क्लास? सैटरडे हाउ को सैटरडे सैटरडे। ठीक है, ठीक है। श्योर। तो इसको करिए, और फील्ड स्टेटस ग्रुप के बाद आई जस्ट गिव यू वन मोर टॉपिक बिकॉज आपके पास टाइम होगा। सर वन थिंग, मैं आपको एक नई ईमेल आईडी सेंड करूंगा, तो आप उसको ऐड करके ना उस पे जो भी भेजना हो, जैसे अगर ये रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो उसको ऐड कर लीजिएगा। ये छोटी रिकॉर्डिंग होगी तो हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम लगता नहीं मुझे। हाँ, इन फ्यूचर, फॉर फ्यूचर, जस्ट फॉर फ्यूचर में। दैट्स फाइन। ये 4 टॉपिक्स हैं, आप लोग इसको गो थ्रू करिए और इसको फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ओके सर। राइट, ओके, थैंक यू। बाय बाय एवरीवन।